नहीं ठीक है और लेखो वो विश्व को कहे और लेखो विश्व दियो इन्फॉर्म कर दिखे यूट्यूब चैनल Namaskar. On behalf of respectful Dr. K. Srinivas Rauji, Secretary, Sahitya Academy, I heartily welcome all of you, all the viewers and participants of today's poetry recitation program to Sahitya Academy's Webline Literature Series. For the viewers, we are going to witness today a program called Literary Forum with a multilingual poetry recitation. And we are conducting this program as part of Ek Bharat Shreshtha Bharat scheme. As you know, dear friends, Ek Bharat Shreshtha Bharat program aim to enhance interaction and promote mutual understanding between people of different states and union territories through the concept of a state and union territory pairing. As part of that, today we have paired two different states. In fact, it's not because Sanskrit is a universal language, and we have paired the Sanskrit with the Odia language, that is in the Orissa state. The states carries out activities to promote a sustained and structured cultural connect in the area of language and learning, culture, traditions, music, tourism, sports, and sharing of best practices, etc. And you know, what is the aim of this Ek Bharat Shreshtha Bharat Abhiyan? As all of us know that India is a unique nation whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural, and religious threads, held together into a composite national identity by a rich history of cultural evolution, coupled with a freedom struggle that was built around the tenets of non-violence and justice. The spirit of mutual understanding amidst a shared history has enabled a special unity in diversity, which stands out as a tall flame of a nationhood that needs to be nourished and cherished into the future. Dear friends, time and technology have narrowed down distance in terms of connect and communication. In an era that facilitates mobility and outreach, it is important to establish cultural exchanges between people of different religions, regions, and as a means to further human bonding and a common approach to national building. So our aim is to connect two different regions together. And with this aim only, the Ek Bharat Shreshtha Bharat Abhiyan has been started to pair two different regions together to bring out the best practice and exchange of best practices. And with this few words, I once again welcome all of you to this literary forum program being conducting under Ek Bharat Shreshtha Bharat Abhiyan. So in this, we are going to have a poetry recitation from two languages. From Odia, we have with our miss Dr. Devi Prasad Bhadra and Miss Deeptimayi Sahu from Odisha, and Sri Pushkar Mishra ji and Dr. Kamala Pandey ji from Sanskrit. So now may I request Devi Prasad Bhadra ji, who by profession who is a doctor, so may I request him to kindly present his poetry recitation in Odia. Sir, thank you, sir, for your kind words. The Sahitya Academy, I am very much thankful to the Sahitya Academy for giving me such an amazing opportunity to recite my poem. Again, I am congratulating all my co-poets on the eve of Ek Bharat Shreshtha Bharat. First of all, I will recite my poem in my mother tongue. Then I will
recite its transliteration verse in English. That's great. That's great. So my poem is now I am starting in my poem in Odia language. कवितार शीर्षक समुद्र कूलर कविता। এই সমুদ্র কূলর কবিতারে দুইটি ছোট ছোট কবিতা আছে, তাকে মু প্রথমে গাউছি প্রথম কবিতাটি। ঠিক কবিতার না অল্প অল্প। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ କେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବି। ଯେତେଥର ଆସିଥିବି ସବୁଥର ଲେଉଟି ପାରିନଥିବି ପୁରାପୁରି। ପ୍ରତିଥର କିଛି କିଛି ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବି ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶାମୁକା ଆଉ ବାଲିଗରଡ଼ା କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ହରାଉଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି। ଖୋଳପା ସବୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ନା ସେମାନେ ଥରକେ ମରିଛନ୍ତି। ଖୋଳପା ସବୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ନା ସେମାନେ ଥରକେ ମରିଛନ୍ତି, ନା କି ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଧ୍ୟାୟ, ବରଂ ସେମାନେ ଆଜି ବି ମରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇ। ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ବି। ଯଦି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ମରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏତେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଯଦି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ମରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ହୁଏତ ସେମାନେ ସତସତିକା ମରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଲେଉଟାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଜୀବନ ବହିର। ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭେଟିବି ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି। ସତରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସତସତିକା ମରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଲେଉଟାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଜୀବନ ବହିର। ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭେଟିବି ଆସନ୍ତା କାଲି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜନ୍ମ, ପିଲାଦିନ, ପ୍ରେମ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଶାମୁକା ମାନେ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କିଛି ମୁକ୍ତା। ସେସବୁ ତେବେ କେଉଁଠି ସାଇତା ହୋଇକି ଅଛି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଯେତିକି ମରୁଛେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତିକି ଅଧିକ ଘନନୀଳ ପାଲଟୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଯେତିକି ମରୁଛେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତିକି ଅଧିକ ଘନନୀଳ ପାଲଟୁଛି ସମୁଦ୍ର। ହୁଏତ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଦିନେ ମରୁଭୂମି ଥିଲା, ଆମ ବଞ୍ଚିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧାର ନେଇ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଯେତିକି ମରୁଛେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତିକି ଅଧିକ ଘନନୀଳ ପାଲଟୁଛି ସମୁଦ୍ର। ହୁଏତ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଦିନେ ମରୁଭୂମି ଥିଲା, ଆମ ବଞ୍ଚିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧାର ନେଇ। Now I am reciting the transliteration verse of my Odia poem, the Alpa Alpa. So many times I would have wished to come to the seashore when I was child, and many times I would have left myself right there. I would have collected few dead oysters' shell and pebbles from the sands. Those would have lost themselves a little by little, just like me. The shells are scattered in such a way as if they are not dead by a single stroke, or death is a single chapter. Rather, they are dying pinch by pinch even today, just like dreams and relationships develop and deteriorate pinch by pinch. If they would have died in a single stroke, how they can be marvelously engraved? Perhaps they are not dying truly, just flipping the pages after pages of the life's book in a full moon night. I am just one page back to them. Those they are meeting today, may I meet them tomorrow. Those things what we have left, like our birth, childhood, love, and forefather, the oysters have also lost their dream and pearl. Then where those are being preserved? The chunks of death that we are going through, more and more the sea turns greener. Maybe the sea once was a desert, borrowing few chunks from our lives.
The chunks of death that we are going through, more and more the sea turns greener. Maybe the sea once was a desert, borrowing few chunks from our life. Sir, it was just my first poem. No, And that was very beautiful because you could metaphor the sea and with the death. That's great. That's great. That's great. That another second part, Odia second part, the Keutara Abhisara. Pardon? Keutara Abhisara means the Okay, Deutara Abhisara. Okay, ठीक Keutara है. Abhisara. Okay. Means the tryst of a fisherman. That's. ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି ବସିଲା ବର୍ଜୁ। ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି ବସିଲା ବର୍ଜୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କନୁଆର ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ ମୁହଁକୁ। ତାପରେ ଚାଳରେ ଖୋସା ହୋଇଥିବା ଅଧା ଚେପ୍ଟା ଅର୍ଜୁନ କାଠର ପଟାଟିକୁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଠଉରାଇ ନେଇ ରାଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ, ଯାହା ବେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି। କନୁଆ ଆଖପାଖରେ ନଥିଲା। କନୁଆ ଆଖପାଖରେ ନଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଭାଉଜ କହିଦେଇ ଗଲେ ଛିଗୁଲାଇ ହୋଇ, ଓହୋ ଭାରିଜା କଥା ତେବେ ଏତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବରଜୁ ନିଜେ ନିଜର ନାଡ଼ି ଆଉ ଦାଢ଼ିରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିନେଲା ଇଏ ମଦ ନା ଜ୍ୱର। ହେଲେ ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ବରଜୁର ଶୁଖିଲା ସେତା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଓଠ ଦୁଇଟି ଅଜାଣତରେ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା ଏବଂ ଥର ଥର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଦେଖିଲା କନୁଆ ଓଦା ସରସର ଲୁଗାରେ ଜାଲ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ମିଜୋରାମ ମାଛର ଥୋଡ଼ିକୁ ଫୋଡ଼ି ତା ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କିଏ କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ବସିଥିଲେ। ସିଂଘାଣୀ ନାକି ପତଳା ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରିବନରୁ ହିଁ ବୁଝି ନେଇଗଲା ଇଏ ତାର ସାନ ଝିଅ ଟିକୁ। ପାଳଭୂତର ହାତ ପବନରେ ଦୋହଲିଲା ପରି ଟିକି ଝିଅର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହାତଟି ସାପ ପରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲା ତା ବାପର ବେକରେ। ପାଳଭୂତର ହାତ ପବନରେ ଦୋହଲିବା ପରି ଟିକି ଝିଅଟିର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହାତଟି ସାପ ପରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲା ତା ବାପର ବେକରେ। ମାସେ ପରେ ଆଜି ହିଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ବସି ପାରିଛି ବର୍ଜୁ। ମାସେ ପରେ ଆଜି ହିଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ବସି ପାରିଛି ବର୍ଜୁ, ନହେଲେ କାଲି ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଭାରି ଅରୁଚିକର। ଜାଲରେ ଜାଲରେ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ମାଛମାନଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଡକାଡକି ହୋଇ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଘେରି ଗଲେଣି ବର୍ଜୁର ଚାରିପାଖରେ। ଡକାଡକି ହୋଇ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଘେରି ଗଲେଣି ବର୍ଜୁର ଚାରିପାଖରେ। ତା ଲୁଙ୍ଗିର ଖୋସଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୁଠାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗେଲ କରୁଛି ବର୍ଜୁ ବଡ଼ ସରାଗରେ। ହେଲେ କନୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କୋରଡ଼ିଆ ଆଖି ତଳୁ ତେର୍ଛା ଚାହିଁଛି ବର୍ଜୁ। ସତରେ ଯେମିତି ବର୍ଜୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରଟିଏ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପଟାକୁ ଏବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଞ୍ଚୁଛି ବର୍ଜୁ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପଟାକୁ ଏବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଞ୍ଚୁଛି ବର୍ଜୁ। ତାକୁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ ଡଙ୍ଗା ନେଇ କନୁଆ ପାଖକୁ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପଟାକୁ ଏବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଞ୍ଚୁଛି ବର୍ଜୁ। ତାକୁ ଏବେ ବାହାରୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଡଙ୍ଗା ନେଇ କନୁଆ ପାଖକୁ। Sir, it was just a poem. That's great. To enumerate the hidden emotion that is not usually seen in the crowd, the emotion for her women that cannot be expressed in the chaos of the shore, that can be only expressed in the deep blue sea, where there will be no one other than he and the imagery picture of her wife. That's great. So he wants to voyage into the deep sea to meet her beloved again and again. So the transliteration verse of my poem, I am just reading it. Yeah. The fisherman's tryst. The fisherman's trust. Tryst. Okay, tryst. Oh, fine. In our Odia, the actual meaning of tryst is abhisara. Okay. Abhisara. The fisherman stands on the deck of his yacht and looks into the deep blue water. His small hut, made up of thatched roof, and the fogged eye of his wife remains behind.
He often finds the face of his destiny in the serene night of solitude. Wow. And consoles himself by murmuring an old movie song. Okay. Meanwhile, he tries to forget her wife's silent move between hunger and dream. And the petals of tear that sprouted and vanished before it rolls down on his wife's rough, dry cheek. That's great. Nice expression. The, That's great. the fishermen have to move far away from the chaos. The fishermen have to move far away from the chaos, from the shore, from the budget of lives. Okay. The fishermen have to move far away from the chaos, from the shore, from the budget of life, to be one with his wife, to be one with his beloved wife, and to come back to the shore with a masculine audacity. Wow. Wow. Nice. Nice. The fishermen have to move far away from the chaos, from the shore, from the budget of life, to be one with his beloved, and to come back to the shore with a masculine audacity, what his wife barely longs for. What his wife barely longs for. Sir, thank you, sir. That's wonderful. Wonderful. What you call comparison to, because one thing I thought of place before you, that there was a one in the first Alpa Alpa in that poetry. I think I was really moved by one stanza that you said. I'm just one page before the. I'm just one page before the today. Sir. So I think as a doctor, as by profession, you must have seen people who almost went on touch the door of death. Sir. Almost. I think that must have been influenced you to be able to pen such a great poem with a flower of the expression and with and one more thing that you went on explain about there is one stanza about the petals, that budget that is not that may not ever what you call allows the fisherman to come back to the seashore to meet his wife. So that's great, Dr. Devi Prasad Bhadraji. It's nice to meet you on a great occasion, because we have been conducting this Ek Bharat Shreshtha Bharat programs to unite and to unite the regions, different regions of our country for that aim only. And today it's great to meet a professional doctor with a pen of. Though the fingers used to catch hold the knife to operate, but today that's the same knife is used as a pen to sketch certain amount of expression. Sir, because in the whole of my literary creativity writings and creativity thoughts, I prioritize the incidents of death. The incidence of death means death is a very continuous process. That's it. If it would not have the continuous process, then how the oysters must be just marvelously crafted. Yeah, exactly. So death make a beautification. It is a means of beautification. It has given the extra essence to our life. Exactly. So the whole thing is articulated surrounding those concepts and keeping the essence of death in the center of the work. If I'm not wrong, there was I think Western poet. I think he's I think I yet to remember his name, but he says that miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. I think Robert Frost. Robert Frost, yes, you are correct. Robert Frost says in his poetry Journey of Maggie, he says that I'm here to miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. So that expression generally moves people to see the other edge of our life.
that I think since you are personally and physically seeing the people, I think you are the right one to make such type of expression with a lot of ease. Sir, just one thing I want to add to your comments, and that the woods are green, dark, and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go. Exactly. Exactly. This Robert Frost original literature is translated by our eminent poet Madhusudan Rao. Acha, acha. There is no Bhakta Kavi. He has Okay, okay. a very good notion about that. He has told that Sundara jetiki ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ Wow, wow. ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ That's great. ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ବାକି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି. Wow, wow, wow. That's great. That's great. Thank you, sir. So thank you so much, Dr. Devi Prasad Bhadraji, for rendering beautiful poetry from Odia language. Now, अधः संस्कृतभाषायां कवितापठनं कर्तुम् अस्माकं मध्ये उपस्थिताः मान्याः युवलेखकाः संस्कृतभाषायां श्रीमान् पुष्कर मिश्र महाभागाः महोदयाः यदि शक्यते चेत् अवश्यं संस्कृतभाषायां कवितापठनं कर्तुम् आरभ्यते. भवता वाणीं सम्यक् अन्म्यूट् करोति. आम्. अद समीचीनमेव. मनसा वद वद मनसा भो त्वं भारत माता जयतु जयतु जय. मनसा वद वद मनसा भो त्वं भारत माता जयतु जयतु जय. अनावृतं हृदयद्वारं कुरु अनावृतं हृदयद्वारं कुरु भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. देशभक्तिरसमथनं कुरु त्वं देशभक्तिरसमथनं कुरु त्वं भारत माता जयतु जयतु जय. भारतीय भूत्वा भ्रमभूमौ भारतीय भूत्वा भ्रमभूमौ भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. पापराशिं क्षिपगंगायां पापराशिं क्षिपगंगायां भारत माता जयतु जयतु जय. भक्तेः निकषोपरि स्वं तोलय भक्ते निकषोपरि स्वं तोलय. भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. हृदयाबोध विलप सम्प्रति त्वं हृदयाबोध विलप सम्प्रति त्वं भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. भरत भारती भारतं च भव भरत भारती भारतं च भव. भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. घोषय सगुण भारतं सोऽहम् घोषय सगुण भारतं सोऽहम् घोषय निपुण भारतं सोऽहम्. मनसा वद वद मनसा भो त्वं भारत माता जयतु जयतु जय. भारत माता जयतु जयतु जय. बहु समीचीनमस्ति महोदय. भारतमातां कृते
जत् गानम्। जी धन्यवाद। अपरमेकम्। अपरमेकम। यदि शक्यते चेत् अस्य गीतस्य अनुवादः हिंदी भाषायाम् अथवा अंग्रेजी भाषायाम् एकवारं। इसका कर सकते हैं, इसको हिंदी में कर दें। जरूर हिंदी में कर लीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जी। मन से बोलो भारत माता की जय बोलो, दिल के सब दरवाजे खोलो भारत माता की जय बोलो, देशभक्ति का रस तुम घोलो भारत माता की जय बोलो, इस धरती पर भारतीय बनकर भ्रमण करो और भारत माता की जय बोलो। जो भी मानसिक विकृतियां हैं, पाप राशि है, उसे गंगा में फेंक कर पवित्र हो जाओ और भारत माता की जय बोलो। देशभक्ति के निकष पर खुद को तोलो और भारत माता की जय बोलो। हे अबोध हृदय, अपनी गलतियों के लिए तुम विलाप कर लो और भारत माता की जय बोलो। भरत, भारती और भारत की त्रिवेणी बनकर इस भारत भूमि पर भ्रमण करो, भारत माता की जय बोलो। अपरम एकम गीतम प्रस्तौमि देव नदी गंगा। अवश्यम हो। देव नदी गंगा, देव नदी गंगा, मरणे सत्यपि स्वर्गं गमयति, मरणे सत्यपि स्वर्गं गमयति, मुक्ति नदी गंगा, देव नदी गंगा, इयमस्माकं पूता जननी, इयमस्माकं पूता जननी, इयं पुण्यशीला, भारतवर्षे वहति पवित्रं, भारतवर्षे वहति पवित्रं रम्य नदी गंगा, देव नदी गंगा, देव नदी गंगा, हिमगिरि शिखरात् याति जलनिधिं, हिमगिरि शिखरात् याति जलनिधिं वधूनवा गंगा, षष्टिसहस्रं नृपान्तारयति, षष्टिसहस्रं नृपान्तारयति भगीरथी गंगा, देव नदी गंगा, इयमस्माकं शान्तिदायिनी, इयमस्माकं शान्तिदायिनी, पापहरी गंगा, पापहरी गंगा, इमां विना जीवितुं न शक्या, इमां विना जीवितुं न शक्या, प्राणसमा गंगा, देव नदी गंगा, देव नदी गंगा, मुक्ति नदी गंगा। हिंद्यानुवादः अस्ति कि हे देव नदी गंगा, मरने के पश्चात लोग आपके जल के संस्पर्श से ही जो है स्वर्ग प्राप्त करते हैं, इसलिए आप मुक्ति नदी गंगा हो। बहुत समीचीन, बहुत समीचीन। आप ही हम सबको पवित्र करती हो, इसलिए आप ही पुण्यशीला हो। भारतवर्ष में स्वयं आप पवित्र हो और भारतवर्ष को भी पवित्र करते हुए बहती हो। आप ही रम्य हो, आपके किनारे ऋषि मुनि रमते हैं। हिमगिरी के शिखर से चलकर आप जलनिधि समुद्र तक पहुंचती हो, एक नवावधू की भांति। और
राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भी आपने ही तारा, और भगीरथ की तपस्या के नाते आप भागीरथी कहलाती हैं। इयम अस्माकम शांतिदायिनी, आपके किनारे ही सबको शांति मिलती है, आप ही सबके पापों को हरती हैं, और आपके बिना भला हम कैसे जी सकते हैं। वास्तविक प्राण भारत की और भारतीयों की तो आप ही हैं, इसीलिए आप माँ गंगा हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या अपरमेकमपि श्रावयितुं शक्यते वा? एकम गीतम अवश्यम अवश्यं अवश्यं प्रस्तौमि। मम ग्रामोऽयम् अयम अस्ति मम ग्रामो, यत्र अहम अस्ति समुत्पन्नो भाग्यात्। अयम अस्ति मम ग्रामो, यत्र अहम अस्ति समुत्पन्नो भाग्यात्। जीवनम नयामि सपरिवारम, विहरामि समोदम सौभाग्यात्, विहरामि समोदम सौभाग्यात्। अस्मिन्नेव परिपक्व गृहे आसीत् कदाचित् पितामही, अस्मिन्नेव परिपक्व गृहे आसीत् कदाचित् पितामही। मम तातो माता प्रभावती, परिपूता जाता इयं मही, परिपूता जाता इयं मही। प्रवहति स्यन्दिका नदी पार्श्वे, प्रवहति स्यन्दिका नदी पार्श्वे, या सई नाम्ना विख्याता। केवलम नदी नो सा काचित्, केवलम नदी नो सा काचित्। सा ग्राम निवासिनाम अपि माता, सा ग्राम निवासिनाम अपि माता। ग्रामे में सन्ति कलाकाराः, ग्रामे में सन्ति कलाकाराः। अभिनेतारः गायका जनाः, अभिनेतारः गायका जनाः। ते परोपकारे संलग्नाः, स्वे स्वे कर्मणि ते वै मग्नाः, स्वे स्वे कर्मणि ते वै मग्नाः। केचित् अध्यापन अनुरक्ताः, कुर्वन्ति च केचित् व्यापारं। केचित् कृषिकार्यं कुर्वन्ति, भूत्वा सर्वेषाम् आधारम्। द्रोणीपुरमिति मम ग्राम नाम, द्रोणीपुरमिति मम ग्राम नाम। पार्श्वे चौखड़ा कपूरपुरम, बरजी रेहड़ा करशूलनाथ। मर्गुपुरमपि च खुंशापुरम, मर्गुपुरमपि च खुंशापुरम। सर्वे ऋतवः आनंदकराः, सर्वे ऋतवः आनंदकराः। आयान्ति यान्ति ग्रामे नित्यं। को दृष्टवान् स्वर्गम लोकम, को दृष्टवान् स्वर्गम लोकम। मम ग्रामे विलसति तत् सत्यम, मम ग्रामे विलसति तत् सत्यम, मम ग्रामे विलसति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदीयां अस्य गीतस्य अर्थः। मेरे गांव का नाम द्रोणीपुर है, जो जनपद जौनपुर के अच्छा। सई नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जौनपुर से हैं? जी। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बात। हाँ जी, तो द्रोणीपुर ग्राम में मेरा परिवार, अभी मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, और हम लोगों का अभी वहां से पूरा जो है संबंध बना हुआ है। ये स्यंदिका नदी रामायण में जो है स्यंदिका के नाम से है, और अब सई नदी के नाम से है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारा जो द्रोणीपुर गांव है, यहाँ पे प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र की ये जन्मभूमि है। आप दोनों ही पद्मश्री और संस्कृत के क्षेत्र में हैं। मुझे पता है, मुझे पता है जी। और हमारे निकटस्थ जो गांव है उसमें करशूलनाथ धाम एक बड़ा प्रसिद्ध गांव है, जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। और चूंकि सई नदी को सती का ही विग्रह माना जाता है, जो हरदोई से निकली हैं, हरद्रोही, तो इसके किनारे शिव मंदिरों की भरमार है। और हमारे यहाँ करशूलनाथ धाम बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव का ही इसमें जो है वर्णन है। गांव के किनारे, नदियों के किनारे की जो भूमि होती है, तो वहां तो प्राकृतिक रूप से जंगल होते हैं, और बहुत ही प्राकृतिक मनोरम दृश्य होता है। उस दृश्य का ही मैंने इस गीत में वर्णन किया है। जी।
बहुत 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 सुंदर है, क्योंकि पुष्कर मिश्रा जी, आपने जो सर्व पाप प्रणनाशिनी गंगा के बारे में आपने बहुत अच्छा सा जो कवितात्मक रूप में वर्णन किया है, क्योंकि हम सभी जी पता है कि गंगा माता इस धरती पर कैसे आया हुआ है, इसका सगर वृत्तांत, और जो गंगावतरण, जो क्योंकि जी रामायण में कि कोई गाथा में वाल्मीकि महर्षि ने फलश्रुति नहीं कहा है, लेकिन केवल गंगावतरण के संबंध में ही वाल्मीकि महर्षि ने इसका वो गाथा सुनने के बाद जो फल मिलने वाली है, ये फलश्रुति केवल गंगावतरण के संदर्भ में वर्णन किया है, जिसके बारे में जी आपने अद्भुत वर्णन किया। और साथ साथ भारत माता की जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, श्रेष्ठता है, अखंडता है, उस चीजों के बारे में भी आपने वर्णन किया। बहुत बहुत आभार हूं मैं, आभारी हूं। और अब हम लोग सुनेंगे, नाउ वी शैल लिसन टू दीप्तिमयी साहू, हु इज ए काइंडली अनम्यूट दीप्तिमयी साहू, unmute the जी audio. सर, Yeah, जी yeah. सर। So Deepthamai Sahu is with us. She's a young research scholar of Odia language, and she wants to kindly read poetry recitation in Odia, followed by English or Hindi translation. शुभ मध्याह्न साथियों, साहित्य अकादमी आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ओडिया और संस्कृत में कविता पाठ के लिए यह साहित्य मंच में आमंत्रित सुधीवर्ग श्रोताओं और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साहित्य अकादमी के वरिष्ठ आयोजकों को इस तरह गुणात्मक साहित्य सभा के आयोजन के लिए दिल से नमन करती हूँ। मैं दीप्तिमयी साहू, मैं ओडिशा राज्य का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ओडिया भाषा साहित्य विभाग की गवेषिका हूँ। मैं स्वभाव से एक कवि हूँ। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी अनुभूतियां हमें हासिल होती है, एक कवि होने के नाते मैं उन्हीं उपलब्धियों को अपने कविताओं में स्थानित करती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो, तो हाथरे हाथ छंदी, ओडिया भाषा रे तो हाथरे हाथ छंदी। यह कविता में रास्ते में गुजरते हुए दो प्रौढ़ दंपति को देखकर लिखा था। उनके बीच की जो समझ, प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाने की एक जो सुंदर भावना है, उसी को मैंने इस कविता में पेश किया है। पहले मैं अपनी मातृभाषा में कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद में इसका हिंदी अनुसृजन आप तक पहुंचाऊंगी। पत्नी के लिए एक पुरुष की भावना को यहाँ मैंने शब्दों में पिरोया है। तो हाथरे हाथ छंदी, तो हाथरे हाथ छंदी, एमती अतिक्रमी जीवी दीर्घ पथ, छाई होई थिले तुई, एमती भूली जीवी पथ श्रांत। एई तो आरंभ हेला आम चला पथर नुआ पर्व, आम मधुर जीवनर आउ एक नवीन अध्याय। ए धूली धूसरित जीवन रे आज भी तू दिशु मते आम प्रथम देखार से गाउलिया सकाळर सजफुटा ढळ ढळ नील कैसम सजल उज्ज्वल। पादरे अलता आउ मथारे सिंदूर पिंधि मो माटी कुड़िया रे साधव बहु परी जेबे तू देइथिलु पाद, तो चूड़ीर ऋणु झुणु शब्द रे शब्दायित हेउथिला मो अगणा, खेलुथिला हृदय आह्लाद। आज भी मने पड़े सूर्यर से लोभिला आखिर ताउरू, रक्षा करबाकू जाई तते मो झाड़ुआ गामुछारे ढांकी देबार से स्नेह बोला मुहूर्त मान। आस्ते आस्ते ए बयसे तनु मने खेलाई देउछि पुणी से दिनर अजଣା पुलक। से दिन परी आज भी तो खिली खिली हस, आउ लाज कुली लता परी लाज हलचल कर दिए मो मरदिया टाणुआ छाती को। आज तो सहारा रे मु चालुछि पादे पादे, चालुथिबी समयांत जाए। ए बार्धक्य ओ दारिद्र्य नईछि नईब आम परस्पर प्रति थिबा प्रीतिर सोहागी। के कहे आजिर प्रेम
बजार रे पन्य हुए बुला प्रेम तो अमर ध्वनि तो हृदय वीणारु मु शुणी पारे तो भावना शुणी पारु तुम हृदु तो पाई झरुथिबा तो नामर प्रेम प्रतिध्वनि समय बणिक सिना एमिति लुचेई देई पारे स्वर्णिम मुहूर्त सबु तोदामिका पेड़ी पसरारे समय बणिक सिना एमिति लुचेई देई पारे स्वर्णिम मुहूर्त सबु तादामिका पेड़ी पेटरारे देखु देखु पुणी ता भितरे लुचेई देई पारे आम अफेरा अतीत आउ रूपा स्मृति सब पार्थक्य कण मौड़ी पारे मन आउ प्राणर फूलंकु छार ए शरीर पछे चरा होई जीर्ण हुई भांगी पारे नाही केबे परस्पर प्रति थिबा आम विश्वास और भल पाइबा। सर इतला ओडिया कविता मैं अब हिंदी में एक कविता की पाठ करूंगी। प्लीज प्लीज। तू अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तो यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, साथ साथ चलने की नया अध्याय भी है अपने मधुर जीवन की। इस धूल मिट्टी के जीवन में आज भी तुम मुझे दिखती हो, इस धूल मिट्टी के जीवन में आज भी तुम मुझे दिखती हो। हमारे पहले मुलाकात की उस गवारो मुबह की तरह ताजा ढुलमुल नीले कमल की तरह सजल और उज्जवल। तुम्हारे नरम पैरों पर लालिमा की धार, माथे पर चमकते सिंदूर की बूंद, मेरे सौंधी मिट्टी की झोपड़ी में एक बधू की तरह जब तुम कदम रखी थी, तुम्हारे चूड़ियों की खनखनाहट में तोरो ताजा हो रहा था यह आंगन। आज भी याद है सूरज की तपिश से तुम्हें बचाने के लिए अपने तौलिए से तुम्हें वो मेरा ढकना, तुम्हें बहलाने के लिए मेरा गुनगुनाना। स्नेह और दुलार से हौले हौले यह शरीर मेरा पुलकित होना, स्नेह और दुलार से हौले हौले यह शरीर मेरा पुलकित होना। कौन कहता है कि आज प्रेम बाजार में नीलाम होता है? कौन कहता है कि आज प्रेम बाजार में नीलाम होता है? प्रेम तो अमर ध्वनि है, मोहनी गूंज है। तेरे हृदय बिना से मेरे जान लेता हूँ, तेरे हृदय बिना से मैं जान लेता हूँ तेरी भावना, सुन लेता हूँ अव्यक्त शब्दों का तान। तू ही मेरे हृदय में बसे प्रेम को सुन, तू ही मेरे हृदय में बसे प्रेम को सुन, मेरे प्रेम के इन भावों को चुन। बुढ़ापा क्या मुरझा सकता है प्राण की फूलों को? यह शरीर चाहे जरा व्याधि में हो जीर्ण, यह शरीर चाहे जरा व्याधि में हो जीर्ण, पर तोड़ नहीं सकता हमारे प्यार विश्वास के यह सुंदर वर्ण, पर तोड़ नहीं सकता हमारे प्यार विश्वास के यह सुंदर वर्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक भी सुनाइए, क्या ओडिया में और एक सुना सकते हो? जी मैं सुना सकती हूँ। हाँ जी, पढ़िए, अवश्य अवश्य। मोबाइल पे देखले से पढ़ी था आप कविता पट्टी गली फुल कविता पे पट्टी गली दीप्ति माई,
दीप्तिमयी साहू आ गया। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो ऑडियो का अनम्यूट कर लो। जी सर। हाँ, हमारे गांव की स्मशान की देखकर मुझे जो उपलब्धि हुई थी उस मुहूर्त पर, उसको देख के मैं उड़िया में एक कविता लिखी थी, उसको उड़िया में पाठ करूंगी। जी जी पढ़ो। आजी काई भारी इच्छा हैला, आजी काई भारी इच्छा हैला थरे ताकू निकटरू देखिबाकू, तामाटीरे पाद थापी प्रणामनाठू पाई स्नेहाशीष, संतर्पणे ता प्रीति मिशा उषुमताकू एक अनुभविबाकू। काई केजानी एबे एबे ता सह प्रत्यक्ष चाक्षुष परे ता पवनर मृदुगंध निशुन तार चतुपार्श्व मो भितरे तियारुथिला बेळु बेळ उद्वेलन उत्साहर मधुर लगन। निस्तेज पड़ी जाउथिबा मो बापांको अबस आखिरे, निस्तेज पड़ी जाउथिबा मो बापांको अबस आखिरे सेदिन मु देखिथिली या प्रति प्रगाढ़ अनुरक्तिर विकल्पन। आपनार लोकंक गहली भितरे थाइबी सेदिन मु अनुभवी थिली तांको अंतरात्मार छटपट निसंगतार कारुण्यता। ठीक जेमिति मो कनिष्ठ भग्नीर कोमल जड़पिंड अग्नि रे निश्चिन्ह हेबागरु देखिथिली गाँ आउ माटी प्रति विकलार्थ वेदना को व्यथातुर दृष्टि परिणति रे एठी मिसी जिबाकू आकुल विनती। थाए सत्य प्रेम, थाए सत्य प्रेम गाँ बाट भिटा माटी बंधु परिजन ज्ञाति कुटुंब पुणी माटी पिंडर मिलन हुई ए मशानी प्रति मुर्मुसुर नेत्राग्रे चित्रित एमती कण, मुर्मुसुर नेत्राग्रे चित्रित हुई एमती कण नाची उठे जन्म माटीर प्राणरूपा प्रतिमूर्ति। एमती कण भासी जाए ता सम्मुखे गाँर छल छल जीवंत प्रतिमा। स्पंदन शून्य एस्मशान केमती बजाए सते आर हृदय वीणारे प्रेमर रागिणी। केमती निर्जीव भूई भरी दिए अन्य पिंडे आपना हृदय साउंटी नेबार भरोसा मिशा जीवनी शक्ति। आज ए अंतरंग मुहूर्तरे, आज ए अंतरंग मुहूर्तरे ता सह वार्तालापर सुजोगरु केमती अबा वंचित हेबाकू चाहिबे कहत तुमे। मो अस्तित्वर निर्चास ओ मो यात्रार अंतिम जेउठी अंतररु अंतरंगी माटिए परी सम्मोहनर अमृत दृष्टि कोले नेबार आदरपण रखिछि जे केमती चिराचरित दृष्टि रे चाहिजिबी कुहमु एमिति। पचारिबी आजि मो जुगाब्दिरु रखिथिबा हृदय रे साइता मो नियुत प्रश्नर संभार। अकलन जिज्ञासार संधान रे घुरी बुली जेतिकी संतुलिछि ए अंतर से सबुर पूर्णाहुति देवी मो भाबिछि एइठी। मनिषर पापतप दुख सुख लज्जा संकोच त्रासर निर्मुख सबूत विलीन करुछि एइठी। समय भी ता मन सिंधुकर अपसरे देउछि गोटी गोटी मनिषर जेते सबु अलंधु लगा स्मृति हजे देउछि नाची नाची एइठी एमती। ए अनुभवी पारे आज तू लागुछु बेसी आपनार आत्मीयंक परी। केउ अनादि कालरु मो गाँ परिजनकु रखिछु तो हृदय साउटी आजन्मरु तो सह मो विधाता जोड़िछि परा आत्मीय प्रतीति। भूलिनी भूलिबी नाही, भूलिनी भूलिबी नाही हृदय मो तुम प्रति रखिली गो असुमारी सरथा साइती। हेघागी मोगा मसाणी, हेघागी मोगा मसाणी निर्लिप्त दृष्टि तुली सुनाउछ तम स्नेही संतान मानंकु। अस्थायी ये जीवन दीपाली दियो जाली आन पाई रखी सम दृष्टि मबुपुरे मिसिबा गरु तुम छाती चिरी दिगे दिगे बुणी दियो स्नेह श्रद्धा सबु हृदु आनी प्रीति फूल मो छातीरे सोई जाओ चिरकाल निघोर एमिति। मो छातीरे सोई जाओ चिरकाल निघोर एमिति। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस दीप्तिमयी साहू। अधः संस्कृत भाषायां कविता पठनं कर्तुम् अस्माकं मध्ये उपस्थिताः अस्माकम् अग्रणी न केवलम् अस्माकं
संस्कृतभाषायां साहित्य च अस्माकं पूजनीयाः परमादरणीयाः डॉक्टर कमला पांडे महोदयानां प्रार्थयामि यत् संस्कृतभाषायां कवितापठनं कर्तुम्। महोदय एक बार अनम्यूट करोतु ऑडियो। एवं समीचीनम्। अधुना श्रूयते सम्यक् एव। साहित्य अकादमी मंचस्य सर्वेभ्यः संयोजकेभ्यः मम पुरतः विद्यमानेभ्यः सुरेश वर्येभ्यः प्रणम्य अहमपि किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। अवश्यं भो। यथा मम अनुजः उक्तवान् एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस शीर्षक से जो आज काव्य पाठ हुआ है 2 भाषाओं में, उसमें मेरे भाई पुष्कर मिश्र जी ने अभी अभी प्रेरित किया कि भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। तो प्रथमतः मैं भारत माता की जय जयकार करते हुए तदनु पुनः आप लोगों का अगर कुछ अनुरोध होगा तो कुछ और भी सुनाऊंगी। जी जी जी। जय जय चले। हाँ जी जी। जय 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 हे भारत माता। बहुत ही सरल तरीके से इन ल्यूसिड स्टाइल में मैंने ये लिखा है जो सबको समझ में आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो हिंदी किया जाएगा। कोई बात। जय 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 हे भारत माता। जय 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 हे भारत माता। जय गंगे यमुने जय सरस्वती। जय गंगे यमुने जय सरस्वती। जय जय उर्मिला सागर भ्रातः। जय 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 हे भारत माता। जय ऋषि मुनि वर जय साधक स्वर। प्रकृति प्रपंचित जय सचराचर। जय जय चिन्मय शुचि विभासमय। निगमागम प्रतिपाद्य प्रमातः। जय 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 हे भारत माता। व्रतति वलय जय 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 तरुवर। व्रतति वलय जय 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 तरुवर। जय नीलांबर श्यामल भूधर। जय नीलांबर श्यामल भूधर। आद्रिशिखर जय विपिन विभव जय। आद्रिशिखर जय विपिन विभव जय। सस्य समृद्धि प्रदातः। जय 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 हे भारत माता। जय संस्कार खचित सरसांतर। जय संस्कार खचित सरसांतर। त्याग तपः वैराग्य दिवाकर। त्याग तपः वैराग्य दिवाकर। याग होम परिपूत दिगंतर। याग होम परिपूत दिगंतर। सुख संपत्ति प्रदातः। जय 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 हे भारत माता। जय अखंड भारत भूमंडल।
अखंड भारत भूमंडल नानात्वेप्येकत्व सुधालय नानात्वेप्येकत्व सुधालय जय जय हे समता ममतामय जय जय हे समता ममतामय परितः शांति प्रणेतः जय 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 हे भारत मातः नानावेश भूषणैर्भूषिता नानावेश भूषणैर्भूषिता विविध प्रांत भाषा संभाषिता विविध प्रांत भाषा संभाषिता परमद्वैत चिन्तनेनाञ्चित परमद्वैत चिन्तनेनाञ्चित भारत भाग्य विधातः जय 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 हे भारत मातः जय काश्मीर तिलक चर्चिता जय जय काश्मीर तिलक चर्चिता जय पंचत्रिंश धारा विलयालय पंचत्रिंश धारा विलयालय कार्तिक सप्तति त्रिशत नियम जय कार्तिक सप्तति त्रिशत नियम जय अभिनव क्रांति विधातः जय 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 हे भारत मातः सत्य सनातन धर्म विभव जय सत्य सनातन धर्म विभव जय प्रस्तनभासि हेतु प्रसृतनभासि किंग जय ऋषे शुनक भारत वंशिं जय ऋषे शुनक भारत वंशिं जय विजयिन् भुवि विख्यात जय 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 हे भारत मातः। अब इतना बड़ा जयकारा लगाने वाली जो कवि भारती है, जय कवि भारती प्रतिपद मधुरे जय कवि भारती प्रतिपद मधुरे सहृदय हृदय विनोदिनी रुचिरे सहृदय हृदय विनोदिनी रुचिरे छंदोलंकृति झंकृति मुखरे छंदोलंकृति झंकृति मुखरे जय सुर भारती मातः जय सुर भारती मातः जय 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 हे भारत मातः। बहुत सुंदर बताना जरूरी है हिंद्यां तु आवश्यकता नास्ति हिंद्यां तु नास्ति वा सरलमेव अस्ति सरलमेव अस्ति अपरं श्रावयामि किम् अपरमपि श्रावयतु अपरमपि श्रावयतु। एक श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ जिनकी बहुत भूमिका रही है, जिन्होंने शिक्षा के आलोक के माध्यम से भारत को एक और श्रेष्ठ विश्व में अकेला विश्व गुरु और श्रेष्ठ बनाया है। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर मैंने कुछ लिखना आरंभ किया है। कुछ विगत वर्ष कोरोना काल के पूर्व
मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र दिल्ली में एक आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसमें अलग अलग लोगों को सब कुछ दिया कि आप ये करिए, आप करिए। तो मुझसे कहा गया कि आप काव्य लिखिए। एक यहाँ से बनारस से वो हैं कौशल किशोर मिश्र जी, आप लोग जानते होंगे, जी जी, जो राजनीति विभाग के बीएचयू में जी जी, विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने एकाएक कह दिया कि ये तो काशी की आन बान और शान है, इनसे कहिए काव्य लिखने को। तो मैंने कुछ प्रयास किया है, अभी पूरा मतलब अभी पूरा स्वरूप में नहीं आया है, कुछ प्रयास मैंने किया है। और मैंने ये सोचा कि जैसे गीत गोविंदम है वैसे मदन मोहन गीतम, ऐसे कुछ लिखने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें अलग अलग कुछ मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा कुछ आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी, आरंभ में है, आरंभ में मंगलाचरण यहीं से किया है। जी जी, इसका अर्थ बाद में बता दूंगी, पहले करके ज्ञान ज्योतिरनुत्तमं ज्वलयति स्वान्तः प्रदीपेषु कः, ज्ञान ज्योतिरनुत्तमं ज्वलयति स्वान्तः प्रदीपेषु कः, क्षुब्धो भारत मातरं निपतितां दृष्ट्वा परेशांकरे, आबद्धामवलोक्य बन्धनिगणे गंगां क्रुधा मूर्छितः, आबद्धामवलोक्य बन्धनिगणे गंगां क्रुधा मूर्छितः, शिक्षादात्र शयोन्धकार कलिलं कश्चित्तुमुज्जृम्भते, शिक्षादात्र शयोन्धकार कलिलं कश्चित्तुमुज्जृम्भते। माने सर्वोत्तम ज्ञान रूपी ज्योति को हृदय रूपी दीपक में कौन जला रहा है? भारत माता को दूसरे वैदेशिक आक्रांताओं के हाथों में गई हुई देखकर दुख से अभिभूत कौन है? बांधों में जकड़ी गई गंगा को देखकर कौन क्रोध से मूर्छित हो रहा है? शिक्षा रूपी दात, दाति अनेन इति दात्रम, दराती, जो बड़ा वाला होता है उसको दात कहा जाता है, छोटी जो घास काटने वाली होती है उसको दराती कहा जाता है। मैं पर्वतीय क्षेत्र की हूँ, तो वहां पर दात्र को दात ही कहते हैं। तो शिक्षा रूपी दात्र को हाथ में लिए हुए अंधकार के झाड़ झंकार को काटने के लिए कौन जम्भाई ले रहा है, कौन जाग रहा है? बहुत सुंदर। इसके बाद इनका जो आगे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा प्रसंग है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कैसे मतलब उनका जीवन चला, बहुत अभाव में ही आरंभ हुआ और कैसे उन्होंने थोड़ा पढ़ा, अच्छे मिल गए उनको गुरुजन। उसके बाद क्या हुआ? निपीय विद्यारसम प्रमेयम, निपीय विद्यारसम प्रमेयम चकार काव्यम मकरंद नामना, कविर्मनीषी वदतां वरेण्यो धामना समाकर्षद शेषलोकम। मैंने जब उन्होंने शिक्षा ले ली थोड़ी, तो उन्होंने मकरंद के नाम से जो है कुछ कविताएं लिखी और उससे जो है वो बहुत अच्छी लगी लोगों को। तो कैसे कर रहे हैं कविता, इसका एक बहुत मधुर प्रसंग है, इसलिए आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा। कोमल कांत पदे कविता सुमनो मकरंद सुवासित गंध, कोमल कांत पदे कविता सुमनो मकरंद सुवासित गंध, भाव भुवि स्फुरित प्रभया नट नागर नूपुर सिंजन मुग्ध, रास रसं परिपातुमरच्यत येन मनोहर पद्य कदम्बः, रास रसं परिपातुमरच्यत येन मनोहर पद्य कदम्बः, राधिका प्रेम पयोधि जले वजगाह भवंस कविर्मकरन्दः, राधिका प्रेम प्रयोधि जले वजगाह भवंस कविर्मकरंदः, राधिका के प्रेम सागर में डूब करके अवगाहन करते हुए वो मकरंद कवि हो गए। तो उन्होंने कैसी कविता बनाई, इस पर आगे एक छोटी सी वानगी है,
भक्ति भरो भगवंत महर्निशा मर्चति गायति यो गुण धानी। भक्ति भरो भगवंत महर्निशा मर्चति गायति यो गुण धानी। तुष्ट मना मन मोहन आचरति प्रिय मत्स्य महावरदानी। मनमोहन भी आ जा रहे हैं उनके, संतुष्ट हो गए हैं उनसे, हैं। तुष्ट मना मन मोहन आचरति प्रिय मत्स्य महावरदानी। प्रेम पयोधि तरंगिणी माह मनोहर सुंदर पद्यम मानी। प्रेम पयोधि तरंगिणी माह मनोहर सुंदर पद्यम मानी। सांवरे कामरी वारे गोपाल पे भाव लटू भई राधिका रानी। सांवरे कामरी वारे गोपाल पे भाव लटू भई राधिका रानी। ये इस पर इन्होंने लिखा है, ये अंतिम पंक्ति मालवीय जी की है। तो उन्होंने जो है किस तरह लिखा, इसको यहाँ मन प्रस्तुत किया है। भक्ति भरो भगवंत महर्निशा मर्चति गायति यो गुण धानी। तुष्ट मना मन मोहन आचरति प्रियमस्य महावरदानी। प्रेम पयोधि तरंगिणी माह मनोहर सुंदर पद्यम मानी। सांवरे कामरी वारे गोपाल पे भाव लटू भई राधिका रानी। तो ये तो लिखा है। कमला पांडे जी शायद हो गया होगा। नहीं, कमला पांडे जी, क्या ये छंद पंचचामर में है क्या? नहीं, ये वो सवैया में है। अच्छा, सवैया में है। तो सवैया में है तो उसी जैसे सांवरे हमने उसको वो अंतिम वाली पंक्ति के ऊपर बनाना था, तो संस्कृत में 3 उसी तरह से अपने बना दिए। अच्छा, सांवरे कामरी वारे गोपाल पे भाव लटू भई राधिका रानी के में जो बैठते थे जिस से उस हिसाब से 3 जो है वो संस्कृत में उसी तरह से बने हैं। बहुत सवैया है ये। नायक धन्यवाद। और भी अभी हाँ, और जो है गंगा पर तो पूरा महाकाव्य ही है मेरा। आपने गंगा पर सुनाया, गंगा पर बहुत लिखा है, समय नहीं है। कभी आप लोग गंगा पर विशेष करेंगे तो उसमें, और नगाधिराज के ऊपर बहुत सुंदर कविता है। तो समय नहीं है तो हम कभी समय होगा तो और एक कविता पाठ में जरूर आपका गंगा नगाधिराजा पूर्वा परो नगाधिराजा, इस विषय पर हम लोग जरूर आपसे एक कविता पाठ करवाएंगे। लेकिन धन्यवाद महोदया, उसमें रखिएगा। तो मेरी कविता है, समय सापेक्ष है इसलिए समय लगेगा। कोई बात अगर आप कहें। धन्यवाद कमला पांडे महोदया। ये नई कविता थी, इसलिए दोनों कविताएं नई हैं, अभी कहीं छपी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये दोनों अभी तो मैं कहीं सुनाती नहीं हूँ मदन मोहन को। मदन मोहन को मन में ही रखी, आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर देवी प्रसाद भद्रा जी, क्या would like to present one more poem? Is it so? Kindly unmute the audio. Kindly unmute the audio. Sir, thank you, sir. Thank you so much, sir, for listening me very patiently. Thank you so much. Sir, it is, sir, I write in 4 Indian languages. That's great. Yes, sir. Sir, I write in Odia, English, Hindi, Urdu और बंगाली में भी कुछ लिखता हूँ। That's great. Sir, it is a poem in Odia. Okay. आखी पिछुड़ा के सहरटा मरुभूमि होई गला। आखी पिछुड़ा के सहरटा मरुभूमि होई गला। नई पालटी गला बालुचर। स्वप्न सबु जरी गोटाउथिबा बस्तीर सानो सानो पिला हेई गले। रास्ता कड़रे सुसुरी बजाउथिबा पानखिया टोकाटा फिल्म हॉल पाखरे पकाइछि नुआ स्टेशनरी दुकान। एथर दुर्गा पूजारे भल बिक्री आसारे। एते शीघ्र केमिति बीतीगला सबु। केमिति मु शिखि पारिली निज चिरा जामापटा को रफू मारिबार।
निज छाई को भी सांगरे न नहीं निर्वासन भोगिबार शर्त को मानि नेली कहा पाई आउ को खुशी कहा पाई मो मांजा सुतारे मु निजे गुड़ी हेई उड़िली आउ कहा हातरे धरई देली नटेई एसबु भितरे किछि स्वप्न आपे आपे सोई पड़िले किछि को लोरी सुनाइबाकू पड़िला किछि लुह चुक्ति मानि नेले किछि अबुझा हेले किछि पचारिले ए चुक्ति कोन ए अबुझापण कोन तांकू कोन कहि बुझाई थांती आ को गप कहि भुलाई नै थांती तांको मन सेई मुठाए तास को तो नै तियारिछि हरेक रकमर घर आंजुलाए कोहर ही आंकिछि स्मृतिर पहाड़ सबुठु बेसी कष्ट कोन जानो सबुठु बेसी कष्ट कोन जानो निज गपरे निजे चरित्रटीए पालटिबा किछि उपाय न पाई निज सहर रे निजे अतिथि हेबा निजकू खोजिबा आउ खोजी खोजी पाई जिबा ठीक सेतिकी बेले जेउठी स्वप्न सबु फुंगुळा देहरे जरी गोटाउथि आउ मा आउ दुर्गा मा विसर्जित हेई गला परे केशवास अंग सौष्ठव अलंकार आभूषण काढ़ी देला परे ठीक तारी भली दिसुथिबे जाहाकू मु खोजिबा भितरे एई सहर मरुभूमि हेई जाईछि That's great. That's great. That is the poem in Odia. Another poem, it is in English, that is the return. A return from where not known. A return from where not known. Still it is to my old and abandoned heart, where the walls are painted with the prehistoric ink and the smell of a closed, unused room of very ancient. Still it is one way, where the other ways are faded with my dreams. Those are withered along with an apparently endless night. On my return, I often find faces of my closed akin. On my returns, I often find faces of my closed akin, those who left this world few months before. So many faces are new to me, like those are about to burn very next to anyone's death. My return is always anarchic, like the last flash of fire that lit on the ground of crematorium. One after another corpses are taken to the ground and they return with a handful of ashes to their relatives. I also return in the same way to me, and for others, I am a traveler of a wrecked ship. That's great. That's great. Sometimes my relatives with love and affection wait for me. Some shed tears for my unduly delay. Some things as if they are crying for a dead man. Some things as if they are crying for a dead man. Some search me within every newborn of their known domain. People, those hate me, in their vigilant eye, I sometimes appear and disappear at the same time. I know my return is very unruly. I know my return is very unruly, still I return with my steps of calmness like a cat. Like a prisoner of a decade, I always prepare for my return in a chaotic way, truly a maniac. My face burns in the fire, I jump and limbs turn flaccid out of injury. I return as if there is no return will have in my fate. I return as if there will be no return in my fate. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Devi Prasad Bhadraji. So with this, this today's literary forum under Ek Bharat Shreshtha Bharat has come to an end. And I sincerely thank all the participants ओडिया भाषा से जो आया हुआ है इस कार्यक्रम में, डॉक्टर देवी प्रसाद भद्रा जी और मिस दीप्तिमयी साहू जी, और संस्कृत भाषा से जो हमारे अग्रणी डॉक्टर कमला पांडे जी और भाई पुष्कर मिश्रा जी, आप सभी को साहित्य अकादमी के परमादरणीय सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की ओर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं।
और इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम समाप्त होने के और मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।